Hello and Assalamu alaikum. Good noon, everyone, and welcome back to Learn Correct English. This is the episode 5th of the English speaking class, and today's situation on which we would be debating in English is resolving disagreements in group projects. So it happens many times in your daily life as a student or as a boss or as an employee in any company that you get different sorts of disagreements or differing viewpoints on a specific topic on which you have to present something, on which you have to uh, deliver your point of view as a project group. All right. So in this episode, we are going to deal with all such kind of dialogues, all such kind of disagreements, and all such sorts of management that comes into play to resolve those disagreements. So, if you have not subscribed to my YouTube channel, please subscribe so and share it with the rest of your class fellows, your colleagues, your friends in order to have better grasp over English language. So let's start for today. It's a scenario. Let's read it collectively. You are working on a group project for your English class. So, before proceeding further, I would like you people to pay closer attention to the pronunciation of the words, how I pronounce specific words, and how you need to pronounce those words in order to have better grasp over the English language. All right. So I would be bilingual here to facilitate the diversity of the linguistic repertoire of my viewers. So I would be using English and Urdu simultaneously. All right. So आप लोग एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और ये आपकी इंग्लिश की क्लास है. So this means कि you people are students and you are working on a specific group project for your English class. Acha ji, the project is to create a presentation. Now you have to present something on a topic of your choice. The group is divided between two topics. Alright, अब एक ग्रुप है, उसने प्रेजेंटेशन देनी है, इंग्लिश की क्लास है और उन दोनों ग्रुप्स में उस एक ग्रुप में दो टॉपिक्स के ऊपर बहस हो रही है. दे आर आर्ग्यूइंग ऑन टू डिफरेंट टॉपिक्स. सो वन इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न कम्युनिकेशन. ठीक है, एक टॉपिक ये है मॉडर्न कम्युनिकेशन मीन्स, जो आजकल हमारी कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, like any social media platform. It can be Snapchat, it can be Instagram, it can be Facebook or WhatsApp or things like that come under social media. तो इन सारी चीजों ने कैसे इन्फ्लुएंस किया मॉडर्न कम्युनिकेशन को. और उसी ग्रुप में कुछ मेंबर्स आपके इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि हमें ये टॉपिक लेना चाहिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिक लिटरेचर ऑन कंटेम्परेरी राइटिंग. अच्छा जी, अब कंटेम्परेरी राइटिंग क्या है प्रेजेंट टाइम्स में, जिस तरह की राइटिंग हो रही है, लिटरेरी टेक्स्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो उसके ऊपर एक कुछ मेंबर्स उसी ग्रुप के बात करना चाह रहे हैं कि जी जो क्लासिक लिटरेचर था, लाइक द ग्रीक, द इटालियन लिटरेचर, उन सारे लिटरेचर का क्या हमारा ऊपर इन्फ्लुएंस है, या आज के जमाने में जो राइटिंग्स हो रही हैं, जो नॉवेलिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना काम, तो उसके ऊपर क्या कोई ऐसा लिंक है कि हम क्लासिक लिटरेचर को स्टिल फॉलो करके आज की राइटिंग्स को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो अब ये दो ग्रुप्स हैं. ठीक है, अब ये दो एक सिचुएशन अराइज हो गई है, एक ही ग्रुप है. ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि हमने जाना है क्लासिक लिटरेचर वाले टॉपिक के ऊपर. ठीक है, और कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि हमने सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के ऊपर जाना है, जो कि मॉडर्न कम्युनिकेशन में उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका इम्पैक्ट आया. सो ग्रुप एक ही है. ठीक है, अब इस ग्रुप में इस डिसएग्रीमेंट को कैसे रिजॉल्व करना है, you need to pay closer attention towards it. And before moving further, I would request you people to subscribe to my YouTube channel, as it gives me immense motivation to come forward with such diverse topics
in order to help you or facilitate you in your English language learning. So these are the characters. Alex is a group leader and he wants to make a decision quickly to stay on track. ठीक है, जो ग्रुप लीडर होता है, आपने भी अपने डिफरेंट असाइनमेंट्स में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस में इस चीज को विटनेस किया होगा। जो लीडर होता है उसको जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो करनी होती है in order to get the process running as soon as possible. So एक और मेंबर है वहां पर, that is Jordan. ये मीडिएटर है। मीडिएटर का क्या रोल होता है? हर एक की बात सुनकर किसी एक कॉमन ग्राउंड पे रीच करना है। एम्स टू फैसिलिटेट डिस्कशन एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड। ठीक है, अब एक और मेंबर है इनका, सैम। सैम जो है वो कह रहा है कि he would be preferring the impact of social media on modern communication, and we have Taylor as member too, और ये क्या कह रहा है? strongly prefers the influence of classic literature on contemporary writing। ठीक है, अब थर्ड मेंबर है कैसी। ये जो है ये न्यूट्रल है, trying to understand both sides and find a compromise। ये कैसा मेंबर है? दोनों साइड्स को देखेगा, दोनों टॉपिक्स की साइड्स को देखेगा और फिर उसको अंडरस्टैंड करके कॉम्प्रोमाइज पे आ जाएगा। चलो जो भी डिसाइड होगा, आई वुड ज्वाइन दैट थिंग। ठीक है, सो ये सारे आपके करेक्टर्स हैं, ये सारे आपके उस ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस and pay closer attention how the group discussion goes on. So there's a dialogue, there is a scene, the group is gathered to discuss their project topic. It happens in our daily life when we are granted such sort of projects or presentations. We gather in a small setting or in a small meeting to discuss what would be the scenario or what would be the topic on which we are going to present to the class. ठीक है, so Alex है, ये group leader है। Okay, now pay closer attention to the pronunciation of the words, how the ideas are articulated और thoughts कैसे एक cohesive form में आगे communicate हो रहे हैं। ठीक है, it would also help you in dialogue writing too। ठीक हो गया, not just in speaking English language। Okay, everyone, we need to make a decision on our project topic। ठीक है, अब जो ग्रुप लीडर है उसने प्रोजेक्ट टॉपिक के ऊपर एक डिसीजन लेना है। वी हैव टू ऑप्शंस, सोशल मीडियाज इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन और क्लासिक लिटरेचर्स इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न राइटिंग। ठीक है, उसने बता दिया ये हमारे पास दो टॉपिक है अपने मेंबर्स को। लेट्स डिस्कस एंड डिसाइड क्विकली सो वी कैन स्टार्ट वर्किंग। ऑलराइट, सो pay closer attention to these words. Decide quickly, let's discuss. So it is the role of the group leader to communicate all these things so that the group may start working quickly. So the member one, Sam, says, I really think we should go with social media. It's more relevant and interesting to our generation. Plus, there's a lot of recent data and examples we can use. All right. So this member one is endorsing his point of view, like he wants to go with the topic of social media, as he says that ये सोशल मीडिया की आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है एंड इट इज काफी जो क्या कहते हैं आपके बहुत फेमस एक टॉपिक चल रहा है हमारी जनरेशन में। सो लेट्स यूज दिस टॉपिक फॉर आवर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसके रिस्पॉन्स में हमने देखना है कि अगले मेंबर ने क्या कहा है या ग्रुप लीडर ने क्या कहा है। ठीक है, सो ये सेकंड मेंबर है टेलर। He says, I disagree. You see, the disagreement arises over here. He disagrees. He says classic literature has had a profound impact on modern writing. जो मॉडर्न राइटिंग हो रही है, कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स हैं, जो नॉवेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो पोएट्री प्रोड्यूस हो रही है, उसके ऊपर वो कह रहे हैं क्लासिक लिटरेचर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। So since it is an English class, so let's focus on this topic. So exploring this can give us deeper insights into how past works influence current literature. It's a rich topic with a lot of historical context. All right. So you see how this second member, ये second member अपना topic, अपनी choice, अपना viewpoint कैसे justify कर रहा है, वो साथ साथ आपको reasons भी दे रहा है why to explore this topic of classic literature for the presentation.
ठीक है, ही इज जस्टिफाइंग कि इट इज अ रिच टॉपिक, इसके अंदर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा है। तो जिस तरह आप रिपोर्ट बिल्डिंग करते हैं, जिस तरह से आपने अगर कोई आर्ग्यूमेंट देना है या अपनी कोई बात मनवानी है, तो यू कम अप विद योर ओन पॉइंट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसी कैसी, मैंने आपको बताया है मेंबर ट्री है, एंड ही इज न्यूट्रल इन दिस। बोथ टॉपिक्स साउंड इंटरेस्टिंग बट आई एम नॉट श्योर विच वन टू चूज। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, दिस मेंबर इज neutral. This member does not want to um, have another disagreement by coming with another topic. तो ये मेंबर क्या करेगा, ये कॉम्प्रोमाइज करेगा, जैसी भी सिचुएशन बनेगी जो भी टॉपिक सेलेक्ट होगा उसके साथ चला जाएगा। आई कैन सी द वैल्यू इन बोथ। ये देखें, ये दोनों टॉपिक्स के अंदर वैल्यू देख रहा है। मे बी वी कैन फाइंड अ वे टू कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ टॉपिक्स। वो कह रहा है कि हम दोनों टॉपिक्स में से कोई ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं कि दोनों में से ऐसे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं जो दोनों को ही कवर कर जाए। ठीक है, सो जॉर्डन मैंने आपको बताया था ये मीडिएटर है, ये फैसिलिटेट करता है ऐसे डिसएग्रीमेंट्स को जो भी आपके ग्रुप प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं, आपके ग्रुप डिस्कशंस में राइज होते हैं। सो ही सेज लेट्स टेक अ स्टेप बैक and see if we can find some common ground. So, what is the role of a mediator in such group projects? He is destined to find some common ground to resolve the disagreement. ठीक है, he stays calm, he does not come up with another fight, or he does not show any tantrum to any of the member, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो सोल्यूशन की तरफ चल रहा है। अब देखते हैं वो क्या कहता है। How about we list the benefits and challenges of each topic to help us decide? ठीक है, अब यहाँ पर बात तो एक उसमें टैग ऑफ वॉर की सूरत आ गई है ना, मतलब कि एक बंदा कह रहा है कि जी हमने क्लासिक लिटरेचर के साथ जाना है, एक बंदा कह रहा है कि हमने सोशल मीडिया वाले टॉपिक के साथ जाना है। तो हाउ टू रिजॉल्व दिस टेंशन बिटवीन दीज टू मेंबर्स, जॉर्डन उसके लिए कहता है कि हम देखते हैं दोनों टॉपिक्स के चैलेंजेस और दोनों टॉपिक्स के बेनिफिट्स। ठीक है, सो देन वी वुड बी एबल टू डिसाइड दैट विच वे वी हैव टू गो। सो एलेक्स जो है ग्रुप लीडर है, उसने जाहिर सी बात है जो भी अंदर नीचे डिस्कशन चल रही है उस सबको जल्दी जल्दी रिजॉल्व करके अपनी ग्रुप की जो प्रोग्रेस है, जो कारकर्दगी है, उसको आगे को बढ़ाना है। सो ही सेज दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। सैम, टेलर, कैन यू ईच लिस्ट द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ योर प्रेफर्ड टॉपिक्स। अब इसमें उसने क्या किया है, उसमें उसने उन्हीं दो इंडिविजुअल्स को पिक किया है जिन्होंने अपने डिफरेंट टॉपिक्स बताए हैं, और उन्हीं दोनों को कहा है कि आप दोनों अपने अपने टॉपिक्स के बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस हमें लिख के बता दें। ठीक है, अब सैम क्या कहेगा, मेंबर वन है श्योर फॉर सोशल मीडिया, उसने बेनिफिट बता दिया, इट्स करंट एंड एंगेजिंग, अ लॉट ऑफ रीसेंट रिसर्च इज अवेलेबल। चैलेंजेस उसने क्या बताए हैं, इट्स अ ब्रॉड टॉपिक, वी माइट स्ट्रगल टू कवर इट इन डेप्थ। अच्छा, यहाँ पर उसने चैलेंज बता दिया कि बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसकी इन डेप्थ स्टडी या उसको प्रेजेंटेशन में कवर करने के लिए हमें जो है ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या हो सकता है कोई चीज कोई एंगल हमारा मिस हो जाए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस टॉपिक का। ठीक है, अब लेट्स मूव टूवर्ड्स टेलर, जिसने क्लासिक लिटरेचर के बारे में हमें बताया था, उसके देखते हैं उसने क्या बेनिफिट्स बताए हैं। इट्स अ वेल डिफाइंड टॉपिक विद रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, provides depth and insights into the literary evolution। ठीक हो गया, अब इसके challenges देखते हैं। It might be less relatable to our audience, could be challenging to connect to contemporary issues। आप देखें, अब क्लासिक लिटरेचर अगर उसने चूज किया था, ठीक है, तो साथ ही उसने बताया कि आजकल की जो ऑडियंस है उसके लिए शायद ये उतना रिलेट ना करे, हो सकता है कुछ लोगों को लिटरेचर में इंटरेस्ट हो। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो आजकल के दौर में जो इश्यूज चल रहे हैं उसके साथ तो ये रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला है सोशल मीडिया वाला, उसके आजकल ऑडियंस में बहुत ज्यादा है, मतलब हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है, एवरीवन इज ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू नेम एनी ऐप। ठीक है, तो जो फर्स्ट वन टॉपिक है वो ज्यादा रिलेट करता है ऑडियंस के साथ एज कम्पेयर टू दिस क्लासिक लिटरेचर वाला जो टॉपिक है। So let's move further how it gets resolved. Cassie says, I see the points you are both making. What if we do a brief section on the influence of classic literature as a historical background in our presentation on social media's impact?
दिस वे वी कैन इनकॉर्पोरेट बोथ पर्सपेक्टिव्स। मैंने आपको पहले कहा है कि कैसी जो है वो दोनों ही टॉपिक्स को इंडोर्स करेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है न्यूट्रल है, वो किसी भी टॉपिक की तरफ जा सकता है, किसी भी टॉपिक को कवर कर सकता है। सो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि आपने चैलेंजेस जो भी बताए, बेनिफिट्स जो भी बताए वो मैंने देख लिए हैं, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि एक ऐसा सेक्शन बनाएंगे अपने प्रेजेंटेशन में जिसमें हम जो क्लासिक लिटरेचर का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, एज ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकली क्लासिकल लिटरेचर ने हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, और उसको हम रिलेट कर देंगे जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के ऊपर, ठीक है। तो इधर से फिर लिटरेचर में क्या चेंज आई और सोशल मीडिया को साथ साथ लेके चलेंगे तो फिर क्या होगा। तो जॉर्डन इस बात पे कहता है दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ऐसी इट अलाउज अस टू टच ऑन बोथ टॉपिक्स एंड प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। हाउ डज एवरीवन फील अबाउट दिस अप्रोच, ठीक है। अब जॉर्डन ने जल्दी जल्दी मेडिएट करवाना है, मैटर को फैसिलिटेट करवाना है, रिजॉल्व करवानी है डिसएग्रीमेंट। So he is quick in his approach, in his command as a mediator. Ab Alex says, I like the idea of combining elements from both topics. It gives us a broader scope and keeps everyone's interest. Can we agree to this? Can we agree on this? ठीक है। अब एलेक्स जो है ग्रुप लीडर है, उसने भी यही कहा है, मीडिएटर के बाद आया है वो। उसने कहा है मुझे भी आइडिया अच्छा लगा कि हम दोनों टॉपिक्स में से जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पर्सपेक्टिव उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसको वी हैव टू कनेक्ट दैट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विद द सोशल मीडियाज इम्पैक्ट, ठीक है, और हम इसको लेके आगे चलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ब्रॉडर ब्रॉडर स्कोप भी हो जाएगा और फिर सबके ही इंटरेस्ट भी जो है उसमें अकोमोडेट हो जाएगा। मतलब जिन लोगों को क्लासिक लिटरेचर में नहीं है इंटरेस्ट, तो वो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से हम कवर कर जाएंगे, ठीक है। अब वो सबसे पूछ रहा है कि कैन वी एग्री ऑन दिस, मतलब वोटिंग करवा रहा है, हु इज गोइंग विद दिस अप्रोच एंड हु इज नॉट। सो लेट्स सी। अब मेंबर वन क्या कहता है, सैम, आई एम ओके विद दैट एज लॉन्ग एज वी फोकस मोर ऑन सोशल मीडिया सिंस दैट्स माय मेन इंटरेस्ट। अब ये यहाँ पर देखें डिसएग्रीमेंट इसी वजह से होते हैं कि जो जो मेंबर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है वो उसके ऊपर स्टिक रहता है, ठीक है। तो अब सैम कह रहा है ठीक है, मैं चल सकता हूँ इस अप्रोच के साथ एज लॉन्ग एज कि इस प्रेजेंटेशन में अगर आपका ज्यादा फोकस सोशल मीडिया पे ऊपर होगा। तो टेलर कह रहा है जो मेंबर टू है, दैट्स फेयर, आई एम हैप्पी टू इंक्लूड सम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑन क्लासिक लिटरेचर, आई थिंक दिस कॉम्प्रोमाइज विल वर्क, ठीक है। अब टेलर ने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया है क्योंकि जब उसकी भी बात सुनी कि ये दोनों टॉपिक सब चल ही रहे हैं, जा ही रही हैं आगे प्रेजेंटेशन में, सो ही सेज दैट ही इज हैप्पी। और जितना भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आप जितना भी कवर कर लेंगे प्रेजेंटेशन में, आई एम ओके विद दैट। सो द compromise is made over here, and now the mediator Jordan says, great, it sounds like we have a plan. Let's outline how we will integrate both topics into our presentation and set some deadlines to get started. ठीक हो गया। अब मीडिएटर ने सारा मामला रिजॉल्व करवा दिया है, मेंबर वन मेंबर टू दोनों एग्रीड हैं, दोनों के टॉपिक्स डिस्कस होंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और क्लासिक लिटरेचर भी कवर होगा और सोशल मीडिया का भी जो इम्पैक्ट है वो भी कवर होगा, ठीक है। और इसको ये रिलेट करने के कम्युनिकेशन या मॉडर्न कम्युनिकेशन के साथ। सो जॉर्डन इज रियली हैप्पी, you see how he has mediated, how he has taught or told both the members to come up with their benefits or challenges about their specific topic. So that is how Jordan has um, sorted out this disagreement or this differing viewpoint. And let's see Cassie, what Cassie says. Perfect. I'll start working on the outline and share it with everyone for feedback. ठीक हो गया? And Alex is the group leader. He says, excellent. Thanks for working through this together. You see, whenever we are united, we are strong. All right. So there is strength in unity. So इन्होंने सबको साथ लेके जो भी डिसएग्रीमेंट था उसके ऊपर काम किया और वो मामला रिजॉल्व हो गया। लेट्स मेक श्योर वी कीप कम्युनिकेटिंग एज वी प्रोग्रेस। जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है हमने मेक श्योर रखना है कि हम कम्युनिकेट करते रहें। मीटिंग एडजॉर्न। सो दिस मैटर इज रिजॉल्व नाउ एंड नाउ द मीटिंग इज कॉल्ड ऑफ। सो मीटिंग हैज एंडेड।
So what do we learn from this communication? So we learn that we need to communicate clearly. ठीक है, अब ये नहीं कि अगर किसी एक को कोई टॉपिक दूसरा पसंद नहीं आ रहा तो मुरव्वतन या तो क्या कहते हैं, किसी का दिल रखने के लिए आप अगले के टॉपिक को मान जाए। आप देखें, मेंबर वन ने अपने पॉइंट्स दिए, मेंबर टू ने अपने पॉइंट्स दिए, एंड दे बोथ आर कम्युनिकेटिंग क्लियरली। इसमें कोई ये सीन नहीं है कि किसी का जो है समवन इज बीइंग हर्ट और क्या है, ठीक है। Everyone has shown patience, tolerance for the viewpoint of the other individual. So ensure everyone understands the different viewpoints and the reasons behind them. And you have to listen actively. You see how in this communication, in this dialogue, everyone was listening to each other actively. So show respect for each person's opinion, even if you disagree. Active listening can help de-escalate tensions. And you have to stay calm. You see the role of mediator, how he has maintained his peace, his calm, his you can say peace of mind. So approach the discussion with a calm demeanor to prevent the disagreement from becoming a conflict. अब यहाँ पर ये वाला जो disagreement, ये conflict भी बन सकता था, ये लड़ाई भी हो सकती थी यहाँ पर. But the positive attitude of the mediator and the members too, that attitude has prevented in forming disagreement to a conflict. So, seek common ground. You have to come to a common point. ऐसे नहीं हो सकता कि हर एक की बात सुनी जाए, ठीक है। तो common ground कैसे आप बनेगा? एक कोई ऐसी हम लोग सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसपे सबके व्यू पॉइंट्स जो है मीट करें, ठीक है। Find common ground. It can help in reaching a compromise. So, be open to compromise. अब ये नहीं होगा कि जी उसका अगर सोशल मीडिया का टॉपिक है तो सोशल मीडिया ज्यादा डिस्कस हो रहा है, मेरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दैट इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड एट ग्रेट लेंथ, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जितना भी चाहे उसकी एक स्लाइड डिस्कस हो जाए, दो स्लाइड्स डिस्कस हो जाए, दैट इज एनफ, एटलीस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज इनकॉर्पोरेटेड इन द होल डिस्कशन. So we need to be open to compromise. We need to be flexible. We need to adjust ourselves according to the situations that arise during such group projects. So I hope that you people have learned how to have a dialogue in the times of crisis, in the times of disagreements, in the times of differing viewpoints. And that is how you need to keep the discussion going on. And that is how you need to communicate effectively, and you need to listen actively in order to resolve any situation. So I hope that you people have learned the basic rules, the basic tips for navigating your project disagreements. And that's all for today. Then correct English. Keep subscribing, keep learning, and keep sharing.